Hello everyone, welcome to our part 5 of research and publication ethics. In this video, we are going to start unit number 2. So specifically if we talk about unit number 2 as per the guidance, whatever the syllabus is, in this session we will try to cover ethics with the respect of science and research, intellectual honesty and integrity, research integrity, and next classes we would be starting scientific misconducts, falsification, fabrication and plagiarism, redundant publication, duplicate and overlapping publication, salami slicing, selective reporting and misrepresentation of the data. So here we are supposed to know what do you mean by scientific conduct or what do you mean by scientific research. So when we say scientific conduct, what you need to follow while you are doing a research. जब हम research करते हैं, साइंटिफिक होना मतलब क्या, एंड साइंटिफिक कंडक्ट मीन्स what does it include, and what do you mean by scientific misconduct. So there are three things that you need to understand. What do you mean by scientific conduct, what is intellectual honesty, what is research integrity, and finally scientific misconduct. Scientific research, when we talk about any research which is scientific in nature, it has to be neutral. Neutral means no biasness. You are not doing any research which is prescribing anything or it is one-sided. There should be no biasness. It has to be systematic, logical. It should have a logical process. It should prove itself and planned. You don't do research on random things or random steps. It has to be planned and multi-step process that uses previously discovered facts to advance the knowledge that does not exist in the literature. This definition is given by OECD 2007. तो जब भी आप आंसर लिखोगे, you can mention this. जब आपका क्वेश्चन साइंटिफिक कंडक्ट से रिलेटेड होगा, देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मिसकंडक्ट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट, डायरेक्टली आप साइंटिफिक मिसकंडक्ट की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं. बट टू गेन सम एक्स्ट्रा मार्क्स यू कैन जस्ट राइट अ साइंटिफिक कंडक्ट का डेफिनेशन, देन वन लाइनर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द साइंटिफिक मिसकंडक्ट. एंड अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक कंडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी, देन यू वुड बी राइटिंग इन डिटेल. ठीक है. सो साइंटिफिक रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल टू डेटा कलेक्शन टेक्निक्स. इट कैन बी ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल of what? Collection, data collection technique, descriptive or analytical concerning causality. Causality is link between effect and its cause and effect relation. Prospective, retrospective or cross sectional to the time. Now there are main three parts of this scientific research. You are going to conduct scientific, so it has to be a scientific conduct. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और साइंटिफिक इंटीग्रिटी, रिसर्च इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्री थिंग्स वन बाय वन. तो साइंटिफिक कंडक्ट क्या होता है? साइंटिफिक कंडक्ट करना यानी यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च विच इज साइंटिफिक इन नेचर. सो इट मीन्स यू आर न्यूट्रल, यू आर ऑब्जेक्टिव, यू आर रैशनल मीन्स लॉजिकल. आप न्यूट्रल हो, बायस नहीं हो. ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी नहीं है, आपकी पर्सनल चीजें उसमें नहीं है, आप कोई चीज प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च वेयर यू आर प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग और अपने खुद के बिलीफ सिस्टम उसमें नहीं डाल रहे हो. इट्स ऑब्जेक्टिव, रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक बिहेवियर दैट स्ट्रेंथ्स द इनोवेशन थ्रू द साइंटिफिक मेथड. मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक कंडक्ट का होता है टू एंश्योर द साइंटिफिक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इनोवेशन. फोकस होता है साइंटिफिक मेथड्स एंड वैलिडेशन पे. वैलिडेशन या वैलिडिटी का मतलब क्या है? सो वैलिडिटी इज टेस्टिंग समथिंग विच इज टू बी टेस्टेड. आप वही प्रूफ करना चाह रहे हो जो आपका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. सो बेसिकली प्रूव यहाँ पे ये नहीं है कि आपने जो सोच रखा है वही प्रूफ. सो बेसिक इज यू आर मेकिंग श्योर कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो वो वैलिड इन नेचर के है. ठीक है.
आउटकम क्या होता है? साइंटिफिकली वैलिडेटेड इनोवेशन होता है। अब इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का वी आर गोइंग टू स्टडी, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में रिटर्न नोट्स के साथ भी पढ़ेंगे दोनों को। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट रहना, बी ट्रूथफुल। आपके रिसर्च में रिसर्च करते वक्त जो भी रिजल्ट आता है, बी ट्रूथफुल। आप पहले से परसेप्शन बना के चल रहे हैं कि नहीं मेरा तो पॉजिटिव ही रिजल्ट होना चाहिए, या आप सोच के चल रहे हो इसका तो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। नो, इट यू हैव टू बी ट्रूथफुल, अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट। शो समथिंग विच इज हैपनिंग, अपना एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंश्योर ऑनेस्टी इन रिसर्च, रिपोर्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन, ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो देखो, ऑनेस्टी में जो कीवर्ड आप याद रखोगे, ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, इसी से ऑनेस्टी, देखो अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि हाँ याद रहेगा, लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं ना तो ये टर्म्स ही भूल जाते हैं। ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल इनोवेशन। अब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? सी व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, इट इज बेस्ड ऑन सम ऑलरेडी डन वर्क, so if you are using someone's work, you need to give them credit, accountable, your responsibility to be transparent enough to give a contribution। मतलब अब उनका भी, जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया है, you need to give recognize, you have to recognize them। So ethical and moral commitment to responsible research, accountability and transparency, ensure ethical research conduct at individual, institution and social level, ethics, responsibility and accountability, ठीक है। सोसाइटी की तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां से आप जो रिसर्च कर रहे हो, जिसका रिसर्च यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। अब जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, इनके 3 लेवल्स हैं या 3 डायमेंशंस हैं। सेल्फ इनोवेशन असेसमेंट, प्रैक्टिस लेजिटिमेसी, ट्रांसपेरेंट इनोवेशन। तो 2 कीवर्ड आपको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से याद रखना है, लेजिटिमेसी, ट्रांसपेरेंट इनोवेशन। Self innovation assessment is self evaluation, when you are doing a critical assessment। आप benchmark कर रहे हो कि this is how, ये एक process है, हमें इसी process को follow करना है, this is the target or this is the benchmark, and वही उसी benchmark के basis पे you are doing an analysis। Practicing legitimacy is being within the law, compliance to the policies, compliance to the peer and open assessment, ठीक है। एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, इफ एवरीथिंग इज नॉट गोइंग गुड, इट इज लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये सही नहीं है, लेट मी डू बेटर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इनोवेशन, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, ट्रांसपेरेंट इन नॉलेज डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ प्रीवियस वर्क। ये है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के 3 मेन डायमेंशंस। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी 3 लेवल पे होनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे, where it means you are maintaining your intellectual honesty। institutional level पे means you are following the values, policies, assessment, intellectual property को आप rules को follow कर रहे हैं। social level, general responsibility toward the society, public, avoiding duplication, humanity, ठीक है, public accessibility to the research, social risk को reduce करना। so this is 3 level। अब साइंटिफिक कंडक्ट का की प्रिंसिपल होता है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल ट्रूथफुलनेस इन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, एंड एथिकल इंटीग्रिटी इन इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। contribution to innovation is produces scientifically sound innovation, produces trustworthy and transparent keywords, and produces ethically acceptable and socially responsible innovations। Clear? Now let's understand this कि आप आंसर बेसिकली लिखोगे कैसे। कीवर्ड्स, वो बेसिक नॉलेज मैंने आपको स्लाइड्स में पढ़ाया, लिखने का तरीका आप उसमें से भी पॉइंट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले ethics with respect to science and research, intellectual honesty and research integrity, that is what the part of B unit 2 is under scientific conduct। ethic in science and research का मतलब क्या है? देखो, ethics को हम ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। so what is an ethics? it is a science and research, ethics in science and research are guiding principles। so guiding principles is कि मैं अगर कोई चीज, कोई बिहेवियर कर रही हूँ, there are certain things, certain rule, principle जिन्हें मैं फॉलो करूंगी, and standard inquiry that ensure research is conducted responsibly, transparently and for benefit of society। 3 चीजें यहाँ, responsible, transparent and benefit to the society।
सो बेनिफिट टू दिस सोसाइटी का मतलब क्या, आप कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं करेंगे जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो. मिनिमाइज द रिस्क. सो की प्रिंसिपल्स इन साइंस एंड रिसर्च, ये आप लिखेंगे. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप लिखते हो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, या की प्रिंसिपल्स इन साइंस एंड रिसर्च क्या है. एथिकल प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पेक्ट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये बेसिक आपके 6 प्रिंसिपल है. इतने भी पॉइंट्स लिखोगे ना, दैट इज इनफ. ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आप डिटेल लिखते चलोगे, इट्स इनफ. सो व्हाट इज ऑनेस्टी, रिपोर्टिंग द डेटा एंड फाइंडिंग विदाउट एनी फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिक. जो जैसा है डेटा को वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप अपना डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप इमेजिनरी डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हो, फैब्रिकेट नहीं कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो. अगर 100 का डेटा है तो 100 ही शो कर रहे हो, उसको 1000 नहीं बना रहे हो या 80 नहीं कर रहे हो. जो इनपुट्स आ रहे वही. ऑब्जेक्टिव, बायसनेस नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी सब्जेक्टिव. अपने इनपुट्स, अपना सोच, अपने मेथड, नो. अवॉइड बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस. Respect to intellectual, citing the others work, very important in research. Proper citing resources and acknowledging the others contribution. Confidentiality, when you have people involved, maintaining their confidentiality is main principle, important principle. Maintaining privacy and confidentiality of personal information, आप जाके डिस्क्लोज नहीं करेंगे. सो वी मेक श्योर कि रिसर्च में हम बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, बट स्टिल इफ यू टेक इट, मेक श्योर इट इज कॉन्फिडेंशियल. एंड इफ यू आर डिस्क्लोजिंग इट, इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट. वो पार्ट ले रहे हैं रिसर्च में, आस्क देम, टेल देम दैट व्हाई दे आर पार्टिसिपेटिंग, what would be the effect of it, and then make sure they are giving their consent, and then you are making them to participate. Accountability, taking responsibility of research process and outcome. जो भी प्रोसेस आप करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, और उसका जो आउटकम होगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंश्योर रिसर्च बेनिफिट टूवर्ड्स द सोसाइटी विदाउट हार्मिंग. रिसर्च के दौरान, while the research is being done, और रिसर्च के बाद, आफ्टर द रिसर्च, there should be no harm. कोई भी किस तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए. मेक श्योर रिस्क एंड हार्म आर मिनिमाइज्ड. अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. सो ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी कीवर्ड है. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रेफर्स टू बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑब्जेक्टिव while conducting, presenting, publishing research. It involves acknowledging the contribution, avoiding plagiarism, reporting the data accurately. तो जो जैसा है वैसे ही, प्लेजरिज्म नहीं करना है. Acknowledge the contribution of others. Importance, it makes scientific knowledge reliable, build trust between the researcher and public. अगर आपका काम ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक विल ट्रस्ट. When there is a transparency का मतलब क्या, मैं वही दिखा रही हूं जैसा है. ठीक है, मैंने जो बोला वही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है. नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिसेस टू होल्ड द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी? प्रॉपरली citing all the resources and contribution, avoid selective data reporting to get a desired outcome. मैंने पहले से सोच के रखा है, मेरा परसेप्शन मैंने बना के रखा है कि मुझे यही आउटकम चाहिए, but it is not possible, right? So you, to get certain desired outcome, आप डेटा को फॉल्सिफाई नहीं करोगे, या आप सिलेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं करोगे. आपने 100 लोगों का फीडबैक लिया, या 100 लोगों का या 1000 लोगों का सर्वे लिया, उसमें से कुछ 500 लोग ही आपके सर्वे में ऐसे हैं जो आपके हिसाब से आउटकम दे रहे हैं, बाकी को आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो या उनको चेंज कर दे रहे हो. सो दिस इज नॉट करेक्ट. यू कैन नॉट डू selective data reporting. Disclosing conflict of interest, that may bias the research. See, conflict of interest, there can be multiple reasons for conflict of interest. Professional, financial. तो अगर किसी तरीके का conflict of interest है, its disclosure is important. Then comes research integrity. और research integrity encompasses adherence to ethical principle, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कीवर्ड ताकि याद रहे, and following the professional standards.
तो आप एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख रहे हो, प्लस जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च वाइल प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग. प्लान करते वक्त, एग्जीक्यूट करते वक्त एंड रिपोर्ट करते वक्त. इट रेफर्स टू ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, एडहेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस. इंपॉर्टेंस क्या है इसका रिसर्च इंटीग्रिटी मेंटेन करने का? अपहोल्डिंग रिसर्च इंटीग्रिटी, सेफगार्ड साइंटिफिक मेथड. जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक पर्टिकुलर मेथड जनरेट किया है उसको सेफगार्ड करना भी रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इफ यू आर मैनिपुलेटिंग इट तो फिर साइंटिफिक कम्युनिटी पे नो वन विल बी ट्रस्टिंग. प्रिवेंट फ्रॉड एंड मेंटेन क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी. नाउ practices to uphold research integrity, training researchers on ethical practice before they start doing the research, give them the knowledge. इसलिए हम ये पेपर पढ़ रहे हैं. Build robust peer review mechanism, get your paper reviewed, work reviewed by peer, ठीक है, who have already been doing their work, who are having the knowledge. Implementing clear guidelines, guidelines होनी चाहिए. ठीक, बहुत सारी गाइडलाइंस है इंटरनेशनल लेवल की जिसे आप फॉलो कर सकते हो वाइल डूइंग अ रिसर्च. 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी: रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी. क्लियर? तो ये था हमारा रिसर्च इंटीग्रिटी. नाउ साइंटिफिक रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय इट? इज अ न्यूट्रल, ये पहले स्लाइड में हमने पढ़ लिया था, systematic planned multi-step logical process that uses previously discovered fact or advanced knowledge that does not exist in literature. Scientific conduct क्या है? It is a neutral, objective and rational. Scientific conduct should help in decision making by approving or disapproving scientific method. See, मैं अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ, there can be multiple method, बहुत सारे methods होते हैं, right? So which method is useful for your research, which is not? That is what scientific conduct explains. Used in innovation, then scientific conduct focus on adherence of ethical principle and theories during the scientific research. ठीक है? This we have already studied in the detailed way. I have explained you in the starting. Clear? So यहाँ पे we complete scientific conduct. What do you mean by scientific conduct? What is intellectual honesty? What is intellectual integrity? Next session we would be starting what do you mean by scientific misconduct. Okay, thank you everyone.